हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग। एंड टुडे इज द second topic of the climatic region, not second, third, I think. And the western temperate, western margin we have already studied. But today we are going to start western margin, western temperate, eastern margin. ईस्टर्न में वेस्टर्न पार्ट में क्या क्या था कंट्रीज के, उनके बारे में हमने पढ़ा, स्टडी किया, लाइक मेडिटेरियन सी जो वेस्टर्न मार्जिन में आता है। अब हमें क्या करना है, अब जो हमें पढ़ना है, जो देखना है बेसिकली, तो वो ये है वेस्टर्न मार्जिन के अलावा भी ईस्टर्न पार्ट में। ईस्टर्न पार्ट में आपके जैसे चाइना है, साउथ अफ्रीका का ईस्टर्न पार्ट, ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, सदर्न ब्राजील एंड ये सदर्न जापान, ये जितना भी है, सेंट्रल नॉर्थ चाइना, ये सारा का सारा आपका ईस्टर्न मार्जिन में आता है। बट वार्म टेम्परेचर है यहाँ पर, क्योंकि कूल टेम्परेचर, वार्म टेम्परेचर की हम बात कर रहे थे, तो इसमें ये चीज़ें जरूर जाना। जब ब्रिटिश और लॉरेशियन पढ़ेंगे ना, तो वो ईस्टर्न मार्जिन में आ जाएगा, वो सॉरी कूल टेम्परेचर में आ जाएगा, तो उस चीज़ को हम कूल में फिर देखेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को हम यहाँ से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसमें हम देखेंगे, इसमें पढ़ेंगे, तो ये देख लेते हैं। वार्म टेम्परेचर, टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन। ओके, सो नाउ इसके अंदर जो दिया गया है, देयर आर थ्री टाइप ऑफ क्लाइमेटिक रीजन वी विल स्टडी। First one is China type, second one is Gulf type, and third one is Nuttall type. Gulf you also come under the eastern margin on the western warm temperature, like a Gulf of Persia, that is also the part of this. So ऐसे ऐसे करके हम इसमें गल्फ में ला सकते हैं, इनको भी देख सकते हैं। ठीक है, सो इनकी चीज़ों को हम समझेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर अगर हम देखें, so you have to pay attention. There are in this chapter like a China type. China type also the name of climatic region. Okay, not only China. China type also covers like South China, North China and Central China and Southern Japan, and China type come under the China type. And next point is Southeast USA, Gulf of Mexico come under the Gulf type. And Nuttall type, Nuttall South, Eastern Australia and Southern Brazil, that kind of. So इसमें आ जाते हैं। ठीक है, so आपको इसमें देखना है चाइना टाइप एंड गल्फ टाइप, and number third is Nuttall type. Okay, so basically you can say under the come under the warm temperate eastern margin, there are three. Okay, so now, so number one is, which is come under the China type. So number one is Central and North China. Central and North China. Okay, number one. Number two, which is, so that is Southern Japan. Okay, so both are come under the China type. And next Gulf type, so Southeast USA. Gulf type. Number two, Gulf of Mexico. Gulf of Mexico. Okay, Gulf of Mexico. And Nuttall type, in the Nuttall type you will see Nuttall in South Africa. Nuttall where? South Africa. And next, which will be Eastern Australia. And number third is also Southern Brazil. Okay, so these countries, these countries are continent. These countries are coming under the warm, temperate eastern margin. So these countries are located in the eastern side.
ओके, सो दैट्स व्हाई वी कैन से कि दीज आर, लेकिन बट टेम्परेचर इज वार्म, वहां का टेम्परेचर कैसा है, वार्म है, तो हम इस चीज को यहाँ पर कर सकते हैं. लेट्स स्टार्ट विथ चाइना टाइप. चाइना टाइप का क्या है, कैसा है, इसका क्या, किसके बारे में पढ़ना है. तो व्हाट इज चाइना टाइप क्लाइमेट एंड विच कंट्रीज एंड क्या क्या इसमें इफेक्टेड है, अफेक्ट क्या करता है, इन सभी को हम यहाँ से देखेंगे. ओके, so basically I will let you know very well about कि China located near the tropical region. Okay, so that's why most of कह सकते हैं maximum जो monsoon is similar to tropical monsoon. So tropical monsoon से similar है, but rainfall throughout the year, there is a rainfall throughout the year, but in the tropical monsoon there is less rainfall is there. So that's why we can say like this. So and summer intense heating of the Central Asia and southern east monsoon also will be affected. Okay, so now similar this China type climate, when we will study about the China type climate, you will see climatic region. So basically China type climate is similar to tropical monsoon, but there is some difference. Tropical monsoon, यहाँ डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि यहाँ पर रेन जो होती है, यहाँ पर रेन बट रेनफॉल कैसा होता है थ्रू आउट ईयर, बट ट्रॉपिकल में थ्रू आउट ईयर नहीं है. यहाँ पर देखा जाए नो, इट मीन्स लेस रेनफॉल सम टाइम. But here in the China type you will see rainfall throughout year. This is the difference between them, that is important. And in the summer you will see, what will you see, you will see intense heating of the Central Asia. In the summer you will see of the Central Asia you will see intense heating, हीट बहुत ज्यादा होगी, हीट होगी. तो क्यों, बिकॉज आप जानते हो रेनफॉल क्यों आता है, बिकॉज ऑफ इंटेंस लो प्रेशर, बिकॉज ऑफ मैक्सिमम हीट. सो देयर इज इन समर इंटेंस heating of the Central Asia and Southeast monsoon also. Okay, and now you will see one more thing also कि इसमें चाइना टाइप में क्या विंटर में भी ऐसा कुछ है कि समर में बस ऐसा कुछ है, अगर थ्रू आउट ईयर है तो सम टाइम यहाँ भी कुछ चेंजेस आएंगे. तो इन द विंटर नॉर्थ वेस्ट मानसून, एक ऐसा साउथ, ये अभी इसके पहले जैसे हमने देखा कि यहाँ पर साउथ ईस्ट मानसून को कवर करता है, इट मीन साउथ ईस्ट. यहाँ पर क्या करेगा, नॉर्थ वेस्ट मानसून को कवर करेगा विंटर में, तो यहाँ भी बारिश कराएगा. तो बेसिकली इस चीज से हम कह सकते हैं कुछ समय के लिए यहाँ बारिश, कुछ समय के लिए यहाँ बारिश, तो दोनों जगह रेनफॉल होगा. तो इसलिए थ्रू आउट ईयर जहां जहां चाइना टाइप काम कर रहा है इन द विंटर सीजन, इन द समर ऑल्सो, सो वहां पर आपको थ्रू आउट मिलेगा. सो इन द विंटर सीजन, in winter what will you see, you will see northwest in the winter. कैसे, कहां पर यहां पर आएगा रेनफॉल आएगा, नॉर्थ वेस्ट मानसून यहां पर आ जाएगा, नॉर्थ वेस्ट मानसून. यहां पर क्या था, साउथ ईस्ट मानसून. ये नॉर्थ वेस्ट मानसून एंड साउथ ईस्ट मानसून. लाइक साइबेरियन प्लेट्यू, साइबेरियन इन द विंटर आप कह सकते हैं. साइबेरियन प्लेट्यू में क्या रहेगा, एंटी साइक्लोन रहेगा, साइक्लोन रहेगा. तो यू विल से एंटी साइक्लोन, बिकॉज देयर इज अ हाई प्रेशर, देयर इज अ कूल रीजन. तो वो कैसा एकदम कोल्ड रीजन है, कोल्ड रीजन के साइबेरियन प्लेट्यू वेरी कोल्ड है ना, यू नो वेरी वेल, आइसबर्ग है वहां बहुत ज्यादा है. तो साइबेरियन प्लेट्यू देयर इज अ हाई प्रेशर, सो दैट्स व्हाई हाई प्रेशर क्या बनाता है, हाई प्रेशर is responsible for anticyclone.
एंटी साइक्लोन बनाता है, साइक्लोन नहीं बनने देता बिकॉज ऑफ कोल्ड एयर। ये फ्लो करती है आउटवर्ड्स एज अ नॉर्थ वेस्ट मानसून, स्नोफॉल होता है, रेन होती है, एंड रेन कैसे, स्नोफॉल रेन के साथ आता है, एंड देख कर सकते हैं वाई जो विंड वर्ड है साइड ऑफ द माउंटेन्स, वहां पर आपको नजर आएगा, वहां पर आपको चीजें दिखाई देंगी। तो यहां से हम एक चीज कर सकते हैं कि इन द दिस सीजन इन द विंटर में आपको क्या नजर आएगा, यहां पर आपका साइबेरियन प्लेट्यू। तो साइबेरियन प्लेट्यू बेसिकली, साइबेरियन प्लेट्यू कैसा है आप जैसे जानते हैं, तो ये हाई प्रेशर है, बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर, व्हाई हाई प्रेशर, बिकॉज ऑफ कोल्ड रीजन यहाँ पर। और ये एक चीज और भी है, ये क्या है, हायर लैटिट्यूड पर, एवरीथिंग इज डिपेंड अपॉन लैटिट्यूड, सो देयर इज अ हाई लैटिट्यूड, इट इज लोकेटेड इन हाई लैटिट्यूड, तो हायर लैटिट्यूड पर है, दैट्स व्हाई देयर इज अ कोल्ड रीजन। कैसा होगा, यू विल फाइंड कोल्ड रीजन, कोल्ड रीजन है यहाँ पर, कोल्ड रीजन होगा तो यहां से आपको कोल्ड रीजन में हाई प्रेशर जहां पर बनेगा, यहाँ हाई प्रेशर भी है, हाई प्रेशर बनेगा तो यहाँ पर सरफेस कैसा होगा, सरफेस देयर इज ऑल्सो, सरफेस विल ऑल्सो कूल, ये भी ठंडा होगा। और जब ये ठंडा होगा तो साइक्लोन बनेगा कि नहीं बनेगा, नो साइक्लोन नहीं बनेगा, यहाँ एंटी साइक्लोन, साइक्लोन बन ही नहीं सकता। और जब फिर इसके बाद यहाँ पर जो एयर है, कोल्ड एयर है, जो ये यहाँ पर कोल्ड एयर जो कूल है, तो यहाँ पे एयर कैसी हो, दैट इज कोल्ड एयर। कोल्ड एयर मूव करेगी, कोल्ड एयर मूव करेगी, बहेगी, फ्लो आउटवर्ड्स, आउटवर्ड्स एज अ नॉर्थ वेस्ट मानसून, कैसे बहेगी, और नॉर्थ वेस्ट मानसून ऐसे बहेगी, ये यहां पर आ जाएगा। एंड इसके साथ साथ यहां पर और क्या आपको जो यहां पर समझ आएगा, जो आप देख पाएंगे, इसके बाद यहां पर स्नोफॉल आएगा रेन के साथ, रेन और स्नोफॉल, एंड यहां बर्फ गिरना शुरू हो जाए। इधर जाओ तो कभी आप देखे हो, आप रसिया जाओ कहीं जाओ तो आप बर्फ पूरी गिरती रहती है, लोग स्वेटर पहने रहते हैं, सो यहाँ कोट पहनेंगे, तो यहाँ पर रेन होगी, इसके साथ स्नोफॉल भी होगा, एंड विंडवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन्स, वहाँ पर आपको सारे माउंटेन्स के जो विंडवर्ड साइड है वहाँ पर रेनफॉल होती है ज़्यादातर। तो हम लोग घूमने भी जाते हैं, देखते भी हैं, सारी चीज़ें वहाँ पर समझते भी हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें चाइना टाइप में जो आपको देखने हैं, तो यहाँ पर क्या करें हम कि अगर हम समझने का ट्राई करते हैं कि चाइना टाइप में कुछ अदर कुछ चीज़ें हैं क्या, चाइना टाइप कहाँ कहाँ किस किस एरिया में लैटिट्यूड में काम करता है, किस लैटिट्यूड, ट्रॉपिकल से ऊपर जो पार्ट है टेम्परेट जोन पर, वहाँ की बात हो रही है। एंड रेनफॉल इज ऑल्सो ड्यू टू द लोकल स्टॉर्म, रेनफॉल आता क्यों है, बिकॉज देयर इज नो वार्म एयर, सो हाउ इट इज पॉसिबल, तो ये कैसे है कैसे नहीं है, तो यहाँ पर आता है ड्यू टू द लोकल स्टॉर्म की वजह से, जो वहाँ पर टाइफून आता है, टाइफून इट मीन साइक्लोन आता है, जब वहाँ पर समर के टाइम पे, लेट समर में, तो उस टाइम पे यहाँ रेनफॉल आने लगता है, ठीक है। सो इसका एक रीजन और भी है, आप इसमें देखें तो आपको ये समझ आएगा कि रेनफॉल इज ऑल्सो, रेनफॉल क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द रेनफॉल, सो यू विल सी रेनफॉल इज ऑल्सो ड्यू टू द लोकल स्टॉर्म्स, ड्यू टू द लोकल स्टॉर्म्स, ये आएगा, ठीक है। तो ये चीज यहां पर आपको दिखाई देगी, लोकल स्टॉर्म्स। और लोकल स्टॉर्म्स में क्या है, क्या रीजन है, लोकल स्टॉर्म्स कब आता है, लोकल स्टॉर्म्स कब बनेगा, तो स्टॉर्म, स्टॉर्म का मतलब बहुत ज्यादा ऐसा तूफान टाइप का, ये कब आएगा, जब आपका टाइफून आता है, यानी आपका साइक्लोन, साइक्लोन के नेम है डिफरेंट, लोकेशन अकॉर्डिंग टू लोकेशन साइक्लोन नेम्स विल बी चेंज होंगे। सो उसके जैसे कि वहां पर है यूएसए साइड हुरिकेन है, यहाँ पर आपका टाइफून है, इंडिया साइड आपको साइक्लोन बोलते हैं, तो यहाँ पर टाइफून आएगा, चाइना बोलते हैं। तो टाइफून ये लोकल स्टॉर्म जो बनता है, तो ये क्या है, लोकल स्टॉर्म से आया। लोकल स्टॉर्म कैसे बना, किससे बन रहा है, तो आप बोले कि टाइफून से, टाइफून विच इज कॉल्ड इन चाइना, दिस इज द साइक्लोन, ओके। तो ये यहां पर आएगा, और ये टाइफून जो है ये कब आता है, लेट समर, गर्मियों के लास्ट में कह सकते हैं, लेट समर टाइम पे ये हमें यहां पर मिलता है। एंड मोर रेनफॉल देन मेडिटेरियन क्लाइमेट थ्रू बीइंग द सेम ऑन द सेम लैटिट्यूड। अगर यहां पर एक कंडीशन और है, अब यहां पर कंफ्यूजन आपको कंफ्यूज करेगा, कंफ्यूज कैसे करेगा कि अगर सेम लैटिट्यूड पर मेडिटेरियन सी भी है, मेडिटेरियन क्लाइमेट भी है, और यहां पर भी सेम लैटिट्यूड, बट देयर इज अ डिफरेंस,
वहां रेनफॉल अलग है, यहाँ पर रेनफॉल अलग है, यहाँ रेनफॉल ज्यादा है, वहां रेनफॉल कम है, बिकॉज ऑफ, मैंने यस्टरडे मतलब लास्ट लेक्चर में आई टोल्ड यू अबाउट द व्हाई इन द विंटर सीजन क्यों आता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट की वजह से, क्योंकि वो विंड उसको लेके आती, वहां से वाटर मॉइस्चर लेके आती है और यहाँ पर छोड़ती है ठंडियों पे, जिसकी वजह से ऐसा होता है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, बट लैटिट्यूड सेम है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर भी हम कर, और इसके पास हमारे क्या है, ओशन पास में है, और ओशन पास में है जिसकी वजह से आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ओशन के साथ साथ वहां से आते आते बीच में आपके कैसे हैं, कैसी कंट्रीज हैं, लैंडलॉक्ड हैं, ड्राई रीजन है, वहां पर वाटर बहुत कम है, तो इन चीजों को लेकर भी हम यहां पर कह सकते हैं इसको। सो यहां पर आप एक चीज पॉइंट आउट लिख सकते हैं कि मेटेरियन में यहां रेनफॉल जो होता है, मोर रेनफॉल देन मेटेरियन, देयर इज अ मोर रेनफॉल, मोर रेनफॉल देन मेटेरियन क्लाइमेट, मेटेरियन क्लाइमेट के अकॉर्डिंग यहां पर आप देख सकते हैं, और बिकॉज मेटेरियन क्लाइमेट बिकॉज थ्रो बीइंग ऑन द सेम लैटिट्यूड, जबकि सेम लैटिट्यूड पर है फिर भी ऐसे हाल हैं यहाँ, तो डिफरेंस आपको समझ में आ गया, डिफरेंस क्योंकि वहां पर वो अलग, वहां पर क्लाइमेट काम करता है, यहाँ पर अलग, तो ये बेसिकली दिस इज अ चाइना टाइप क्लाइमेट। नाउ वी विल सी द गल्फ टाइप। व्हाट इज गल्फ टाइप? जैसे मैंने बताया कि मैक्सिको है, यूएसए है, साउथ ईस्ट यूएसए एंड मैक्सिको, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहां पर आप देखेंगे ना कि यहां पर कैसे आता है चाइना टाइप, आप देख रहे हैं कि आप जो गल्फ ऑफ मैक्सिको से क्या जाता है, आप नियर गल्फ ऑफ मैक्सिको, वेयर इज लोकेटेड गल्फ ऑफ मैक्सिको? गल्फ ऑफ मैक्सिको लोकेटेड लोअर लैटिट्यूड, तो लोअर लैटिट्यूड पर है, तो लोअर लैटिट्यूड कैसा, लोअर लैटिट्यूड इट मींस हॉट सरफेस, देयर इज अ सी सरफेस टेम्परेचर विल बी वार्म। अगर वहां का वार्म है तो चेंजेस तो आएंगे आएंगे, तो वहां से गल्फ स्ट्रीम, आप जानते हैं ना वार्म गल्फ स्ट्रीम दैट इज द नेम ऑफ द ओशियन करंट्स विच इज वार्म, सो यहां से होके जाती है, एंड ऊपर से लेब्राडोर जो करंट आती है जो कि विच इज कोल्ड करंट, तो दोनों जाके मिलती है न्यू फाउंडलैंड पर, जहां पर फिशिंग बहुत अच्छी होती है, फिशिंग प्रोटेक्शन अच्छा होता है, वहां पर मछलियां बहुत पैदा होती हैं, तो यहां पर आप ये कह सकते हैं। बट देयर इज अ लेस एनुअल टेम्परेचर रेंज, यहां पर लेस एनुअल टेम्परेचर है, अगर द वार्म ड्यू टू द गल्फ स्ट्रीम की वजह से, यहां पर थोड़ा सा ओशियन करंट है जिसकी वजह से ये वार्म हो जाता है, एंड ऑन द सो ट्रेड विंड्स की वजह से, तो यहां पर हम इस चीज को कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट सिटी यहां का क्या है, ओरियंस एंड अटलांटा, यहां पर देखने को आपको मिल सकता है गल्फ टाइप का, सो आप इसमें कर सकते हैं। ठीक है, गुड इवनिंग। तो इसमें लेस, देयर इज अ गल्फ टाइप, तो in the Gulf type what will you see, you will see less annual temperature, range, why, एंड यहां पर वैसे वार्म होना नहीं चाहिए होता ना, बट फिर भी वार्म है। वार्म क्यों है, बिकॉज वार्म क्यों है यहां पर, इसका जो एनुअल टेम्परेचर रेंज है, टेम्परेचर की बात करें, ड्यू टू, आई टोल्ड यू ऑलरेडी, ड्यू टू द गल्फ स्ट्रीम। What is Gulf Stream? Gulf Stream basically warm current, ocean current, and it is also located near equator, and you will say also located on lower latitude. Okay, दिस इज, तो ये चीज आ जाएगा। एंड ऑन सो ट्रेड विंड, यहां पर आप देखेंगे ना ट्रेड विंड्स आती हैं यहां पर, जब आप गल्फ की, ये भी उसी के पास है, ट्रेड विंड्स यहां से आएगी। जब ट्रेड विंड्स आएगा, ट्रेड विंड्स आज जो यहां पर है, इसके बाद इंपॉर्टेंट सिटी कहां कहां इफेक्ट डालती है, तो आपको न्यू ओरियंस, ठीक है, आप इसमें जो आपका न्यू ओरलियंस है वो अटलांटा है, ये सिटीज है यहाँ की इंपॉर्टेंट सिटीज, आप देखोगे गल्फ के ऊपर तो आपको ये नजर आएगा। ठीक है, सो देयर इज 2 सिटीज विच इज इंपॉर्टेंट सिटीज जहां पर हमें इसका इफेक्ट देखने को मिलता है, तो ये है न्यू ओरलियंस नंबर 1, नंबर 2 अटलांटा।
ठीक है, तो ये दो सिटी आपकी यहाँ पर आ जाती हैं गल्फ में। लेकिन इसमें इसमें एक चीज और है, बट देयर इज नो डिस्टिंक्ट ड्राई सीजन, देयर इज नो डिस्टिंक्ट ड्राई सीजन बिकॉज रेनफॉल मैक्सिमम इन समर एंड देयर इज अ अनस्टेबल एयर मास, थंडर स्टॉर्म्स आते हैं, अनस्टेबल एयर मास है, तो यहाँ पर रेनफॉल मैक्सिमम होता है, बट कब होता है? इन समर। गर्मियों में आपको मिलेगा ये, जब गर्मियों में मिलेगा, और वो भी किससे? थंडर स्टॉर्म की वजह से आता है, एयर मास की वजह से आता है, जो कि अनस्टेबल है, स्टेबल नहीं है कि यहाँ परमानेंट चलता ही नहीं, अनस्टेबल है। तो हम इस चीज को यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी हैं जहां से हम कह सकते हैं गल्फ स्ट्रीम का, जैसे लेट समर में आपका हुरिकेन आता है यूएसए साइड, तो ये साउथ ईस्ट यूएसए मैंने बताया कि है इसमें। और विंटर में आप समर में कहें तो यहाँ पर विंटर में टेम्परेट साइक्लोन आता है, जिसकी वजह से यहाँ रेनफॉल हो जाती है। हुरिकेन का मतलब क्या है? साइक्लोन, साइक्लोन आएगा तो ये अपने साथ रेनफॉल लेके तो आएगा ही आएगा, क्योंकि रेनबैंड जो होते हैं उसके किनारे में, वो अपने साथ कुछ ना कुछ लेके आते हैं कुछ समय के लिए। ठीक है, ओके। एंड नाउ अनुराग पटेल, नाइस, ओके, थैंक यू। तो ये हमारे इसमें दो चीजें इसमें देखने को मिलेगा। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द गल्फ टाइप। व्हाट इज गल्फ टाइप? नटल टाइप, नॉट गल्फ टाइप वी हैव स्टडीड। नटल टाइप, नटल टाइप क्या है? नटल टाइप का इट मीन्स नैरो लैंड, जहां पर लैंड बहुत कम हो, लाइक ऑस्ट्रेलिया में है, डरबान सिटी है, ऐसे आप देखिए इसमें अलग अलग सिटीज के बारे में आप जाइए, फ्रांस में नीचे वाले पार्ट पे चले जाओ, इसके बाद आप इसमें आओ, यहाँ पर देख लो। तो जो ये सिटीज है यहाँ पर छोटे छोटे लैंड जो टूटे हुए हैं, वहां पर जो मानसून तैयार होता है लाइक, तो वहां पर हम बोलते हैं इसे नटल टाइप। नटल इट मीन्स नैरो लैंड। सो नटल टाइप क्लाइमेट, नटल इट मीन्स नैरो लैंड, नैरो लैंड। अब नैरो लैंड है यहाँ पर, नैरो लैंड, डोमिनेंस ऑफ मैरीटाइम क्लाइमेट। क्या है ये? कैसे? नैरो लैंड, डोमिनेंस ऑफ मैरीटाइम क्लाइमेट, इस कर सकते हैं यहाँ पर किसका डोमिनेंस है? मैरीटाइम क्लाइमेट का, डोमिनेंस ऑफ मैरीटाइम क्लाइमेट, मैरीटाइम क्लाइमेट। तो मैरीटाइम क्लाइमेट, ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड से चलती हैं। साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स कहां से चल रही हैं? ओके, सो साउथ, जो हमारा साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स है, it brings even distribution of the rainfall throughout the year। जो साउथ ईस्ट, ध्यान समझना, साउथ ईस्ट नीचे वाले पार्ट में जो यहां से चलने वाली है एयर, यहां से चलने वाली एयर है ईस्टर्न साइड, ईस्टर्लीज विंड, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स जो आपकी यहां से इधर वाले पार्ट में चलती है, ये ट्रेड विंड्स है, ऐसे चलती है ना। ये मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूं। यहां पर कैसे चलती है हवा? एयर विंड ऐसे, दीज आर ट्रेड विंड्स। सो ये जो ये वाली ट्रेड विंड्स है, दैट इज कॉल्ड साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। साउथ ईस्ट ट्रेड विंड की अगर बात करें, ये क्या करती है? ब्रिंग्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। थ्रू आउट ईयर जो रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन लेके आती है वो ये है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल थ्रू आउट ईयर, थ्रू आउट ईयर। अब ये कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट सिटीज, जैसे डरबान, डरबान भी आपकी छोटी सिटी है यहाँ पर भी, लेकिन छोटे छोटे लैंड कवर करती है, बहुत ज्यादा उस पे नहीं है लैंड पे, तो छोटी छोटी लैंड पे आता है, बहुत छोटी छोटी कवर करती है। ठीक है, अब यहाँ के वेजिटेशन की बात करेंगे, चाइना टाइप के वेजिटेशन की। अभी ये खत्म नहीं हुआ, ये मत सोचने खत्म हो गया, अब इसमें चाइना टाइप क्लाइमेट, वेजिटेशन, ये सारा चाइना टाइप वेजिटेशन, नटल टाइप वेजिटेशन, ये सारे चीजों पे हम काम करेंगे।
अगर हम यहाँ पर वेजिटेशन की बात करें तो हाई रेनफॉल अगर है यहाँ पर तो क्या होगा, वार्म टेम्परेचर इट मीन्स, तो लॉन्ग टेम्परेचर है जहां पे हाई रेनफॉल होगा। ये तो इसकी बात है कि यहाँ रेनफॉल हो रहा है, बट एक मैं आपको वैसे बता दूं वेजिटेशन यहाँ का कैसा है। वेजिटेशन तो आप समझ ही जाएंगे, इट मीन्स यहाँ का क्लाइमेट कैसा है। तो यहाँ पर हाई रेनफॉल है, हाई रेनफॉल इट और टेम्परेचर ज्यादा हो, हाई रेनफॉल इट मीन्स ये सीधा सीधा एक सिंपल सा लॉजिक है, हाई रेनफॉल इज मीन टेम्परेचर हाई है, इसका टेम्परेचर इज वेरी हाई, वार्म टेम्परेचर ज्यादा है इसमें, हाई रेनफॉल वार्म टेम्परेचर, लॉन्ग ग्रोइंग सीजन होगा। क्या है, लॉन्ग ग्रोइंग सीजन लंबा चलेगा और इसमें एवरग्रीन वेजिटेशन मिलेगा, लॉन्ग ग्रोइंग सीजन यहां पर मिलेगा। लॉन्ग ग्रोइंग सीजन की वजह से आप यहां पर देखिए कि यहां पर क्या होगा, जब बारिश हो रही है और हाई रेनफॉल है तो वेजिटेशन कैसा होगा, एवरग्रीन होगा। यहाँ का जो पेड़ पौधे रहेंगे प्लांट्स वो कैसे, एवरग्रीन, एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेगा। और रेनफॉल है तो यहाँ पर लॉ टॉल ट्री मिलेंगे, मैंने उसमें बताया था आपका इक्वेटर इक्वेटोरियल क्लाइमेटिक जोन पे भी यही बताया था मैंने, है ना। ओके थैंक यू। सो ये है, अब इसमें एवरग्रीन वेजिटेशन तो है लेकिन ब्रॉड लीव है, चौड़ी पत्तियां मिलेंगी यहाँ पर, फॉरेस्ट है, ग्रास है, फर्न्स है, बम्बूज है, पाम्स है, ये सब यहाँ मिलेगा। ठीक है, तो ये है, ये यहाँ पर हमें दिखाई देती है, ग्रास, फर्न्स, बम्बूज एंड पाम्स। अब एग्रीकल्चर इन चाइना टाइप में, एग्रीकल्चर कैसे कैसे होता है और कहाँ कहाँ एरिया पे चाइना में होती है। तो नाउ एग्रीकल्चर इन चाइना टाइप, देयर इज इंटेंसिव एग्रीकल्चर, यहां पर कैसा है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर, राइस कल्टीवेशन ज्यादा होता है, लार्जेस्ट राइस प्रोडक्शन है बिकॉज रेनफॉल ज्यादा है, रिवर्स ज्यादातर निकलती हैं आपकी हिमालय से, तिब्बत प्लेट्यू से, तो वहां से होते हुए आती हैं, तो वहां पर रेनफॉल, इसलिए ये भी होता है कि ये भी है रेनफॉल का, रिवर्स का, कि रेनफॉल क्यों होता है, क्योंकि रिवर्स है तो वहां पर एवापोरेशन बनने में बहुत ईजी हो जाएगा। दूसरी चीज है कि वहां पर ये ज्यादा होगा, अगर बारिश ज्यादा है तो वहां पर राइस कल्टीवेशन अच्छा होगा, लार्जेस्ट राइस प्रोडक्शन में आ जाता है। ठीक है, तो यहां पर राइस प्रोडक्शन अच्छा हो जाएगा, इसका एग्रीकल्चर अच्छा होगा, राइस प्रोडक्शन। लार्जेस्ट राइस प्रोडक्शन है चाइना में, चाइना की अगर बात करें, चाइना में, चाइना लार्जेस्ट राइस प्रोडक्शन यहां होता है। ठीक है, और यहां पर कौन कौन, और सेरिकल्चर वेरी फेमस है यहां का, सेरिकल्चर, सेरिकल्चर यांगत्जी सिकियांग रिवर बेसिन। ठीक है, यांगत्जी रिवर जानते हो ना, यांगत्जी रिवर तो आपने सुना होगा, सिकियांग है रिवर, ये दोनों बेसिन पर ज्यादातर होता है, सिकियांग। तो ये दोनों रिवर्स हैं जो यहाँ पर अक्सर इनमें होता है, देख सकते हैं, तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके साथ हम अगर डिस्कस करते हैं कि एग्रीकल्चर गल्फ टाइप में कैसा एग्रीकल्चर होगा, तो ये भी कॉटन के लिए गल्फ टाइप क्या है, गल्फ टाइप में कॉटन के लिए बड़ा बेस्ट है। क्यों बेस्ट है, आपने गल्फ टाइप का देखा, वहां पर भी रेनफॉल होती है और दूसरा ओशन के किनारे है। तो अगर हम गल्फ टाइप की बात करते हैं, ये यहां पर, तो ये बेस्ट सुइटेड कह सकते हैं, बेस्ट सूट करता है फॉर द कल्टीवेशन। यहाँ के अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो ये कॉटन के लिए बेस्ट है यहाँ की, क्योंकि यहाँ की लैंड भी कैसी है, ब्लैक है, और टेम्परेचर भी वैसा ही है। लॉन्ग ग्रोइंग सीजन यहाँ पर है, फ्रॉस्ट ट्री हो डेज यहाँ पर आते हैं बिकॉज यहाँ ठंडा है, तो फ्रॉस्ट भी पड़ता है, पाला पड़ जाता है, खराब हो जाते हैं, ब्राइट सनलाइट भी आती है, हाई रेनफॉल भी होता है, और टोबैको कल्टीवेशन भी अच्छा खासा हो जाता है, तंबाकू खेती भी अच्छी होती है, और तंबाकू हमारे यहाँ आता भी है। फेमस यहाँ की जो टोबैको है दैट इज कॉल्ड वर्जीनिया, वर्जीनिया दैट इज फेमस टोबैको ऑफ द गल्फ टाइप। वर्जीनिया
टोबैको, ये वहाँ की फेमस है। बट वहाँ टोबैको भी होता है और साथ ही साथ वहाँ पर कह सकते हैं कि रेनफॉल भी होता है और एक कॉटन कल्टीवेशन के लिए फेमस भी है। ये दोनों चीजें हम इस पे ला सकते हैं, ये सारी चीजें समझ सकते हैं यहाँ पर। ठीक है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन चाइना टाइप। इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैसे आती है चाइना? चाइना में अगर सबसे ज्यादा जैसे देखा जाए तो चाइना में सबसे ज्यादा कैसे, हर एक उसमें चाइना टाइप जहां जहां क्लाइमेट काम कर रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज देखें, ये चाइना टाइप में तीनों पार्ट आ जाते हैं, नटल भी आ जाता है, आपका गल्फ भी आ जाता है और चाइना टाइप भी आ जाता है। तो अगर हम इसमें देखें तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज किस जगह पर कितना होता है, चाइना में देखें तो कितना है, यूएसए में देखें तो कितना है, और साउथ अमेरिका में देखें कैसे है, नटल में कैसे क्या क्या चीजें हो सकती हैं, ये सारी चीजों को हम अगर एक उसमें देखें सही से तो आपको यहां समझ आ जाएगा। तो नंबर वन इज कंट्रीज की अगर बात करते हैं तो यहां पर आपको इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन चाइना टाइप, चाइना टाइप क्लाइमेट में कैसे कैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज होंगी। अब इसमें अगर हम एक्टिविटीज की बात करते हैं तो यहां पर आपको क्या नजर आएगा, यहां पर आपको दो तीन चीजें, एक तरफ कंट्री लिखिए, एक तरफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज लिखिए। नंबर वन चाइना, चाइना में आपका राइस, राइस मैंने बताया ना लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस, और टी, टी तो यहां होता, टी में भी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, कॉटन, और साथ से मैज मक्का, मलबरी, इनमें इसका अच्छा खासा इकोनॉमी आती है। अच्छा एक चीज और भी है इसमें कि ये हमारा और यहाँ का जो ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था इंडिया में और चाइना में, लगभग लगभग दोनों जगह सेम टाइम पे ही आया, आगे पीछे थोड़ा सा कह सकते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन। बट चाइना इन एग्रीकल्चर में सबसे टॉप पे पहुंच रहा है, चाइना इंडिया से बहुत आगे है। व्हाई? रीजन इज कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है, वहाँ जो पॉलिसीज आती हैं इससे रिलेटेड, तो वो तत्काल वो कहाँ से नीचे लो लेवल से वो शुरू करते हैं। लो लेवल से शुरू करने पर इस वजह से पहले वो क्या करती है, सबसे पहले खर्च करती है, जैसे कि योजनाएं सबसे पहले वो करती है कि किसानों पे कैसे इंप्लीमेंट होना चाहिए, तो बेसिकली वो सही से इंप्लीमेंट हो जाती है, इंप्लीमेंट होगा और उसके लिए सारी पॉलिसीज होती हैं। जब वहां से कुछ फंड बचता है तो फिर ये जो स्मॉल जो वो है ट्रेडर्स कह सकते हैं, बिजनेसमैन है, उनके पास उनको देते हैं, पॉलिसीज लेके आते हैं, फिर उससे बड़े वाले बिजनेसमैन को, फिर पॉलिटिशियन को, ऐसे चलता है वहां पर। तो इस तरीके से वहां पर से अपने यहाँ क्या है, पॉलिसी तो बन जाती है बट वो पॉलिसी का एग्जीक्यूशन नहीं होता, सही से एग्जीक्यूट नहीं होगी तो काम ही नहीं होगा, क्योंकि दिमाग में माइंड में तो बहुत सारी चीजें होती हैं हमारी माइंड में, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तो वो सारा का सारा प्लान फ्लॉप है। ठीक है, तो वही चीजें हैं। अब नटल की बात करें, नटल यहाँ सुगर केन। नंबर थ्री साउथ अमेरिका, यहां पर आपको कॉफी और मैज सबसे ज्यादा मिलता है, यहाँ की इससे आती है यहाँ की इकोनॉमी, मक्का। नंबर फोर यूएसए, नॉर्थ अमेरिका में कहें, मैज रीजन है यहाँ कॉटन टोबैको और वर्जीनिया टोबैको यहाँ ज्यादा होती है, सो मैज भी यानी आपको मैज रीजन है, वैसे मक्का ज्यादा होता है, लेकिन अगर अलग से देखें तो यहाँ टोबैको भी है। अब टोबैको यहाँ की सबसे ज्यादा फेमस कौन सा टोबैको, जैसे मैंने बताया वर्जीनिया, सो वर्जीनिया जो है वो आपकी सबसे फेमस टोबैको, इसे खाओ, हो सकता है इसमें अलग टाइप का नशा होता हो, तो अलग अलग चीजें हैं, नशा भी तो चीज है ना अपने आप में एक, तो होगा कोई वर्जीनिया टोबैको जो सबसे फेमस होगी जिसमें अलग नशा टाइप का होता होगा, तो वैसे वाली यहाँ पर है। अब इसमें अगर हम अब आते हैं कूल टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन पे, ये तो आ गए वार्म टेम्परेट में। अब कूल टेम्परेट में आएंगे तो यहां आपको मिलेगा क्या चीज, ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट। ठीक है, तो कूल टेम्परेट रीजन मैं थोड़ा सा आपको पिक्चर भी दिखाऊंगा।
जहां जहां रेड से है ना, ये कोल्ड टेम्परेचर का वेस्टर्न मार्जिन है। वेस्टर्न मतलब वेस्टर्न एरिया में है, देखो वेस्टर्न पार्ट में वेस्टर्न, ईस्टर्न का मतलब इस साइड एरिया में रहेगा, ईस्ट साइड। वेस्टर्न का मतलब पीछे साइड, है ना। वही चीज मेन है जो देखना मैप में, यही देखते हैं, ठीक है। गुड इवनिंग मनदीप। सो बेसिकली कूल, कूल का मतलब क्या है, ठंडा। ठंडा कहाँ मिलेगा, ब्रिटिश साइड जाओ। गोरे क्यों होते हैं, क्योंकि ठंडा होता है, ठीक है। तो सारा कुछ ठंडा है वहां, तो ठंडे की वजह से ब्रिटिश टाइप। ब्रिटिश इट मीन्स ब्रिटेन, नॉर्थ फ्रांस, नॉर्दर्न जर्मनी, नॉर्वे, वेस्टर्न कनाडा, वनक्यूअर आइलैंड, तस्मानिया, न्यूजीलैंड, सदर्न चिले, ये सारा चीज आता है। बट अफ्रीका में नहीं है ऐसा, अफ्रीका में ऐसा नहीं मिलेगा। थोड़ा बहुत कहीं बिंदी पड़ जाएगी तो फिर हो गया, नहीं तो अदरवाइज है नहीं। तो अगर हम इसको, यही ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट है, इसके अंदर हम कूल यानी ठंडे की बात कर रहे हैं, तो ठंडे की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हम यहाँ पर इसकी चर्चा करें कि यहाँ पर कैसा मिलेगा, ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट यहाँ मिलेगा। जहां पर आपको ठंडी जगह, यहाँ पर ठंडा, यहाँ पर ठंडा रहेगा। ऊपर साइड देखो इक्वेटर, यहाँ तो ऊपर जैसे जैसे हम पोलर रीजन के पास जाएंगे, हाई लैटिट्यूड में जाएंगे, तो वहां हमें अलग अलग चीजें दिखाई देना शुरू हो जाएंगे, है कि नहीं। सो यहाँ पर ब्रिटेन, नॉर्थ नदर्न फ्रांस, यहाँ पर कैसे होगा, ब्रिटिश टाइप में कौन कौन से एरिया आएंगे, अगर इन एरिया की बात करें तो ब्रिटेन नंबर 1, नदर्न फ्रांस, ये कंट्रीज आपको मिलती जाएंगी, देख सकते हैं आप। नदर्न जर्मनी, नदर्न जर्मनी, नॉर्वे, नॉर्वे। आप इसमें और देखें तो कनाडा साइड आ जाओ, यहाँ कनाडा इस साइड, इस थोड़ा सा कनाडा यहाँ पड़ता है आपको, ये वेस्टर्न वाला पार्ट, पीछे वाला पार्ट पड़ जाएगा, कनाडा का है ये। कनाडा यूएसए के पास भी तो कनाडा है, तो यहाँ पर वेस्टर्न कनाडा आ जाएगा, वनक्यूअर आइलैंड आ जाएगा, वेस्टर्न कनाडा, वैनकूवर, सॉरी आइलैंड, वैनकूवर आइलैंड, तस्मानिया, न्यूजीलैंड डाल सकते हो, तस्मानिया, न्यूजीलैंड। अब इसके बाद यहाँ पर न्यूजीलैंड के बाद अफ्रीका में नहीं है, सदर्न चिली में है, इस वाले पार्ट में है, यहाँ पे ये चिली है, सेंट्रल चिली है, तो यहाँ पर तो है। सदर्न सेंट्रल चिली किस में आता है, मेडिटेरियन क्लाइमेट में, ये आपका आता है इसमें, ठीक है। ओके सुलेखा चटर्जी, गुड। अब इसमें हमें ये है, अफ्रीका में तो नहीं है ये। अब इसमें कूल टेम्परेचर में यहाँ यहाँ कूल है। अब ब्रिटिश टाइप में क्या क्लाइमेट का हैबिटेशन कैसा है और कैसे लोग रहते हैं यहाँ पर, कैसे कैसे चीजें बदलती हैं, तो यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा इसकी बात करूँ तो आपको यहाँ पर बेस्ट क्लाइमेट फॉर ह्यूमन हैबिटेशन के लिए सबसे अच्छा क्लाइमेट यहाँ देखने को मिलता है। ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट में थोड़ा सा यहाँ का एरिया बता दूँ, बड़ा सुंदर लगता है वहाँ का, इसलिए तो वहाँ ज्यादा सुंदर सुंदर लोग हो जाते हैं, गोरे गोरे। सो अब गोरे की बात है, अब गोरों के चक्कर में जिन्होंने देश ही कब्जा कर लिया, तो बेसिकली वो जगह अच्छी है, लोग भी अब अच्छे होने लगे हैं, बट फितरत तो वही रहती है, कभी कभी माइंड से तो जाता है नहीं। आज भी उनका दिमाग, कभी भी आपको मालूम होना चाहिए कि वहाँ कभी भी किताबों पर, वहाँ की किताबों पर कभी भी, हाँ फॉरेनर वाले, किताबों पर कभी भी ये नहीं सिखाया जाता कि आप लोग वहाँ कभी हारे हैं।
कभी भी वो अपने बच्चों को यही सिखाते कि हम हमेशा जीते हैं, हमेशा सबको हराया, गुलाम किया, इसलिए वहां अंदर से भरा रहता है कि हम बहुत विजेता हैं। तो कैसे भगा गए ये नहीं बताते है कभी भी, ठीक है। ये आपको कुछ वेजिटेशन में दिखाऊंगा, इसमें आपका मन भी लगा रहेगा, दिल लगा रहेगा, ऐसा कुछ दिखाऊं मैं। चलो देख ही लो, है ना। ये देखो, ये यहाँ का वेजिटेशन है। कभी कभी आपके हिसाब से देखना पड़ता है, नहीं फिर कहोगे सर क्लास में बस पढ़ाई ही होती है, मज़ा तो आता नहीं कुछ समझ में कि कुछ इंटरेस्टिंग बात क्या है। तो इंटरेस्टिंग यही है, फोटो देख लो, क्योंकि आज का हमारा ह्यूमन यही है, ह्यूमन नेचर। फोटो देखकर ही हम अपने आत्मा को शांति दे देते हैं कि बस अपना तो चक्कर यही होना है, ठीक है। ये कुछ विजिटेशन है यहाँ का, कितना अच्छा है, देख लो। तो बेस्ट फॉर क्लाइमेट, बेस्ट क्लाइमेट फॉर ह्यूमन हैबिटेशन, ठीक है। ये क्या है, ये बेस्ट क्लाइमेट है किसके लिए, ह्यूमन हैबिटेशन के लिए। सब चीज यहां पर मिलेगी आपको, जो चीज चाहिए आपको। और यहां पर वार्म करंट मॉडरेट करती है। क्यों अच्छा है, क्योंकि जब वार्म करंट आती है, एक तो वैसे कूल रीजन है, लेकिन जब वार्म करंट आती है तो यहां कुछ चेंजेस आ जाते हैं, फिर वो अच्छा मॉडरेट क्लाइमेट नजर आता है और थोड़ा सा अच्छा लगता है ना, भीनी भीनी सी खुशबू आए वैसे वाला। तो वार्म करंट है यहाँ पर, कैसा आएगा, वार्म करंट, वेस्टर्न साइड है बिकॉज, तो वार्म करंट। अगर वार्म करंट जो जाती है, वार्म करंट भी इफेक्ट डालती है, तो यहाँ पर क्लाइमेट कैसा कर देगा, ये मॉडरेट कर देगा। अब मॉडरेट हो जाने की वजह, मॉडरेट हो जाएगा कहाँ, किस एरिया में, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट देख लो, अस्कन करंट देख लो, अलास्कन करंट, यहां पर बिल्कुल ठंडा है। आप अलास्का साइड जाओगे बिल्कुल ठंडा है, बट वार्म करंट की वजह से यहां मॉडरेट हो गया। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट में आप देख लो, तो ये कैसे, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट हो गया, अलास्कन हो गया, जो कि आपका बेरिंग स्ट्रेट के पास है। तो यहां पर इसलिए हो रहा है क्योंकि यहां पर क्या है, यहां पर दोनों का यहां पर मॉडरेट हो रहा है। अब गर्मी आपको लगी हो, कोई आपके पास आ जाए और लेट जाए साथ में, फिर आपको जो गर्मी में ठंडी लग रही हो, अब कोई आ जाए गर्मी देने के लिए साथ में बगल में लेट जाए, तो कितना महसूस अच्छा होता है कि वाह अब तो गर्मी चली गई, रजाई भी हटा लो तो चलेगा काम अपना। तो वो वाला सीन है। आपने सौगंध मूवी देखी है अक्षय कुमार की, तो वो जाता है फिर कहता है कि नहीं, पहले ठंडी में खुद मारता है उसको, मतलब कपड़े उठा ले जाता है, फिर लड़की जब ठंड हो जाती फिर कहता है नहीं इसको तो गर्मी देना बड़ा जरूरी है। तो वो जो गर्मी मिल रही है ना, तो वही सेम है, वहां पर मॉडरेट हो गया क्लाइमेट, अब उसका आनंद अलग आ रहा है। तो सेम चीज यहां पर भी, यहां मॉडरेट हो रहा है। तो मॉडरेट क्लाइमेट है, वार्म समर होगा, कूल विंटर्स होंगे, ज्यादा कूल हो जाएगा विंटर में, लेकिन वार्म समर बहुत ज्यादा कूल नहीं होगा, वार्म नहीं होगा बट होगा। तो इस वजह से वार्म करंट की वजह से थोड़ा यहां पर मॉडरेट हो जाएगा। यहां पर कैसे, इसलिए यहां पर टेम्परेचर जो होगा वो लो होगा, है ना। तो लो टेम्परेचर यहां पर आ जाएगा, कैसा हो जाएगा टेम्परेचर, एनुअल टेम्परेचर कैसा होगा, लो हो जाएगा। एनुअल टेम्परेचर कैसा हो जाएगा, लो, एनुअल टेम्परेचर विल बी देयर। तो ये चीज यहां पर आ जाएगी। अब इसके बाद रेनफॉल कैसे आती है, किस वजह से आती है रेनफॉल। अब ब्रिटिश टाइप की बात कर रहे हैं हम। अब ब्रिटिश टाइप में आपको किनारे वेस्टर्न जगह है, एक यहां पर है, आपने देखा ना, मैंने जैसे बताया ये किस किस एरिया पे है। आप देखिएगा कि मैंने जैसे कहा कि भाई इधर यहां पर आपका आ रहा है, यहां पर आ रहा है, कुछ इधर अलास्का, ब्रिटिश टाइप, यही तो है ब्रिटिश टाइप। अब कुछ इधर ऑस्ट्रेलिया टाइप में आ जाए, ऑस्ट्रेलिया के पास आ जाए ब्रिटिश टाइप, यहां भी है ब्रिटिश टाइप, ऑस्ट्रेलिया में भी। अब यहां पर जो रेनफॉल लेके आ रहा है, कौन लेके आएगा, आप समझने वाली बात है। अगर इस साइड से, ईस्ट साइड से कोई भी विंड चलेगी, तो मैंने शुरू में बताया है, स्टार्टिंग में जब हम पढ़ रहे थे विंड्स के बारे में, तो वहां पर क्या बताया था
कि जब इधर से कोई विंड चल रही होगी, मान लो अर्थ है और इधर से जो चलेगी तो यहां तक आते आते ड्राई हो जाएगी, तो ये रेनफॉल यहां कराएगी, यहां नहीं कराएगी। इसलिए यहां पर क्या हो जाता है, क्या बनता है, यहां पर डिजर्ट्स बनते हैं। और जो इधर से वेस्टर्लीज चलेगी तो यहां रेनफॉल कराएगा और इधर आते आते ड्राई हो जाएगी, तो यहां पर रेनफॉल हो जाएगा। तो रेनफॉल जो यहां पर ब्रिटिश में होगा, ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट में, तो वो रेनफॉल कहां होगा आपका, वेस्टर्लीज विंड की वजह से। इसकी वजह से ये रेनफॉल लेके आएगी, बट ये वेस्टर्न साइड ही रेनफॉल कराएगा, ईस्टर्न साइड में नहीं कराएगा। वेस्टर्न कोस्ट रिसीव द मोस्ट रेनफॉल टुवर्ड्स द इंटीरियर। यहां पर साइक्लोन जो बनेगा, साइक्लोन जो बीच में बनते, देखो यहां पर जो इक्वेटर के पास बनेगा दैट इज ट्रॉपिकल साइक्लोन, बट जो ऊपर बनेंगे टेम्परेट जोन पर, पोलार जोन से नीचे, तो वहां पर कौन से बनेंगे, टेम्परेट साइक्लोन। तो यहां पर टेम्परेट साइक्लोन भी क्रिएट होंगे, है ना, क्योंकि यहां पर सरफेस वार्म नहीं हो पाता, यहां एयर से वार्म हो जाता है, इस वजह से टेम्परेचर की वजह से होता है यहां पर। और ये टेम्परेट साइक्लोन भी रेनफॉल लाता है विंटर्स में। कब लाता है ये, विंटर में, विंटर सीजन में ये भी लेके आता है। तो हम इसको कर सकते हैं, यहां से इसको समझ सकते हैं कि ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट कैसे कैसे आता है। अब ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट में जो आपको वेजिटेशन मिलेगा, वेजिटेशन कैसा होगा यहां पर, तो अब वेजिटेशन की अगर बात करूं तो मैं थोड़ा सा यहां पर पेड़ है कहीं, रुको, वेजिटेशन जो आएगा आपका वो कुछ नहीं, ये नहीं है, लॉन्ग ट्रीज हैं उसमें, ओके नो इशू, आप लिख लेना, नहीं तो फिर मुझे दिखाना पड़ेगा। इसमें नहीं, वेजिटेशन की बात करें तो उसमें लॉन्ग ट्रीज हैं, बहुत लंबे लंबे, टॉल कह सकते हैं, टॉल ट्रीज विद गुड कैनोपी कवर, ऐसा लगेगा कैनोपी टाइप से, ऐसे इस टाइप के यहां बनेंगे। सॉफ्ट वुड होगी, ट्रीज इन प्योर स्टैंड, जैसे ओक, एल्म, बिर्च, इस टाइप के पेड़ होंगे, ओक, बिर्च, ये पेड़ यहां पर आपको मिलेंगे, इल्म, तो ये सारे एल्म, ये सारे आपको पेड़ यहां पर मिलेंगे देखने को। इसके साथ साथ आपको जो ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट में देखने को, लंबरिंग इन कनाडा, कनाडा और वैनकूवर सिटी में जाओ तो लंबरिंग पेड़ या फिर सिस्टमेटिक लंबरिंग, ऐसे टाइप के पेड़ यहां पर नजर आएंगे आपको। और विंटर कटिंग में वुड लॉन्ग फ्लोट एंड द रिवर्स इंडस्ट्रीज में अगर देखें तो वहां पर विंटर में कट करके और इससे पानी के साथ बहा देते हैं इंडस्ट्री से, फिर वहां पर जाकर होता है। जैसे आपने देखा है ना, एक मूवी देखी होगी वो, कौन थी वो मूवी, एक आई थी जिसमें ये झुकेगा नहीं, है ना, पुष्पा झुकेगा नहीं, पुष्पा मूवी थी, हाँ। तो वैसे पुष्पा मूवी में क्या करता है वो, कि पुष्पा उस जो आपकी लकड़ियां होती हैं चंदन की, उसे नदी में डाल देता है आगे रोक कर, फिर उसे वो कर, सेम यहाँ पर भी होता है, विंटर में कट करते हैं और इसे फ्लोट करा देते हैं रिवर में, और फिर जाके इंडस्ट्री के पास या आप स्वाद जो जो अपने अपने को वो बनाए होंगे स्टेशन, वहां पर उसे रोक लेते हैं, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर तरीके से, पुष्पा जैसे नहीं कि दौड़ के गए, कुदा दिया, फिर आगे जाके रोक लिया, तो फिल्म में ही संभव है, रियल लाइफ में नहीं है ऐसा। फिर साउथ की मूवी में तो अलग ही है, फिजिक्स इस काम करती नहीं वहां पर, तो वहां पर जैसे ब्रह्मानंद टाइप का आदमी तो हवा में उड़ा देता है गाड़ी, है ना, तो दोनों की अलग अलग टाइप है। अब एग्रीकल्चर की यहाँ बात करते, यहाँ पर मार्केट जो सबसे ज्यादा होती है वो गार्डनिंग की ज्यादा होती है, फ्रूट वेजिटेशन ज्यादा होता है यहाँ पर, है ना, फ्रूट की खेती ज्यादा होती है और गार्डनिंग अच्छी होती है। सो एग्रीकल्चर मार्केट कैसा, एग्रीकल्चर यहाँ एग्रीकल्चर मार्केट गार्डनिंग की है, अगर यहाँ की एग्रीकल्चर की बात कर लें हम। एग्रीकल्चर इन ब्रिटिश टाइप, तो यहाँ गार्डनिंग कह सकते हैं। गार्डनिंग के साथ साथ यहाँ कल्टीवेशन फ्रूट एंड वेजिटेबल्स ज्यादा होती हैं। क्या होती हैं? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये दो चीजें होती हैं इसमें।
फ्रूट एंड वेजिटेबल। जैसे तस्मानिया, ऑस्ट्रेलिया में आपका पड़ता है तस्मानिया, वहां पर एप्पल की फार्मिंग सबसे ज्यादा की जाती है, जो कि आपका इस वाले पार्ट में ऑस्ट्रेलिया में ना इस साइड पड़ता है, ये ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट इसमें आएगा यहाँ। तो यहाँ पर इस चीज को देख सकते हैं, तो तस्मानिया यहाँ पड़ेगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं। अब ईस्टर्न मार्जिन पे चलते हैं, लॉरेशियन टाइप क्लाइमेट देखेंगे, इससे ऊपर के पार्ट में थोड़ा सा चलेंगे, ठीक है। अब आते हैं, सॉरी, कूल टेम्परेचर ईस्टर्न मार्जिन। ठीक है, ये कैसा है, यहां पर कौन सा मिलेगा आपको, लॉरेशियन टाइप। ये जैसे आपका इसमें आ जाना, कूल में समझो ऊपर चल रहा है, हायर लैटिट्यूड पर लोकेटेड है, कहां पर, हायर लैटिट्यूड पे लोकेटेड है सारा। हायर लेटीट्यूड पे यहाँ ट्रांजैक्शन होता है साइबेरियन और ब्रिटिश टाइप के बीच में, जब जो आपने जंक्शन देखते हो ना, दो जगह की रास्ता वो क्लियर होती है, तो उस जगह पर ये जो बनती है वो लॉरेशियन टाइप आ जाती है आपकी, ठीक है। लॉरेशियन टाइप क्लाइमेट उसी को बोलते हैं। तो ट्रांजिशन बिटवीन द ब्रिटिश एंड द साइबेरियन क्लाइमेट, इन दोनों के बीच में जो ट्रांजिशन करता है उस क्लाइमेट को हम साइबेरियन क्लाइमेट बोलते हैं। एक तरफ साइबेरिया है, एक तरफ ब्रिटिश है, इसके बीच का जो ट्रांजिशन फेज है दैट इज ये, इसे हम कह सकते हैं कूल लॉरेशियन टाइप। लॉरेशियन प्लेट्यू अगर बात करें, लेब्राडोर प्लेट्यू, क्वेबेक स्टेट, ये सारा न्यू इंग्लैंड में रीजन ऑफ द यूएसए का जो है, न्यू इंग्लैंड रीजन ऑफ यूएसए, वो एरिया इसी के अंदर आता है। चाइना मंचूरियन जो है पार्ट, साउथ ईस्ट पार्ट ऑफ रशिया, नॉर्थ जापान, ये सारा का सारा इसी के अंडर में आ जाता है लॉरेशियन में। लिख सकते हैं आप इसमें, न्यू इंग्लैंड रीजन ऑफ यूएसए, चाइना मंचूरियन पार्ट एंड साउथ ईस्ट पार्ट ऑफ रशिया, नदर्न जापान, ये सारे जो कंट्रीज हैं ये इसके अंडर में आ जाती हैं, और यहाँ ये वाला पार्ट इसके लॉरेशियन टाइप के क्लाइमेट में ये डिपेंड करती है, ठीक है। अब इसमें अब हम लॉरेशियन टाइप क्लाइमेट जो है कहाँ कहाँ असर करेगा, साउथ अमेरिका में भी करेगा कि नहीं करेगा, कैसे क्या करेगा, उस चीज को भी देख लेते हैं, क्या कहाँ और भी क्या क्या पार्ट आते हैं। तो ये आपका सदर्न हेमिस्फीयर में बिल्कुल नहीं लॉरेशियन पार्ट पाया जाता, बिकॉज ऑफ लॉरेशियन का मतलब है हायर लैटिट्यूड, नीचे हायर में जाएंगे तो ऑस्ट्रेलिया के बाद तो कुछ है ही नहीं है, तो जब ऑस्ट्रेलिया के बाद कुछ है नहीं तो वहां पर लॉरेशियन क्या होगा, जीरो। जब है ही नहीं तो कहां से मिलेगा, लॉरेशियन तो आएगा ही नहीं, जब है ही नहीं तो है नहीं, तो ये चीज इसका थोड़ा सा ठीक से हम इसे समझ सकते हैं। बिकॉज हार्डली एनी लैंड बियॉन्ड 40 डिग्री लैटिट्यूड तक है नीचे, जहां तक ऑस्ट्रेलिया है, इसके बाद तो है ही नहीं, तो फिर वहां मिलेगा नहीं। बट साउथ अमेरिका, एंडीज ब्लॉक, द वेस्टलीज ओशनिक इन्फ्लुएंसेस, थोड़ा बहुत साउथ अमेरिका में कह सकते हैं, एंडीज माउंटेन है जो ब्लॉक है, वहां पर वेस्टलीज जो है आपका, वहां पर ओशनिक इन्फ्लुएंस की वजह से थोड़ा बहुत कहीं पहुंच जाता है, जिसे हम कह सकते हैं कि लॉरेशियन का पार्ट है, बट वो भी एक कह सकते हैं कि जीरो है, थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं। क्योंकि आप देखो साउथ अमेरिका में जाएंगे तो यहाँ थोड़ा बहुत आपको मिल जाएगा, तो क्या ही मिला, थोड़ा सा ओशनिक इन्फ्लुएंस की वजह से कि ओशियन आ रहा है तो थोड़ा बहुत ठंडा कर दिया, यहाँ पर ओशियन करंट आ रही है तो उसकी वजह से थोड़ा सा ठंडा हो गया, वेस्टलीज हवाएं आ रही हैं तो मान लेते हैं थोड़ा सा। बट ऑस्ट्रेलिया तो उससे ऊपर ही है, तो ऑस्ट्रेलिया इसके ऊपर भी है, तो यहाँ पर इधर वैसे माना नहीं जाता कि नॉट इन सदर्न हेमिस्फीयर, बिकॉज द जितना लैंड है वो 40 डिग्री से पहले ही, 40 डिग्री के नीचे है नहीं लैंड, तो हम इस चीज को इसमें कह सकते हैं, इस चीज को यहाँ पर बोल सकते हैं। इसके बाद लॉरेशियन क्लाइमेट जो है नदर्न अमेरिका की बात करें तो यहाँ पर ये फर्क डालता है, क्योंकि ऊपर साइड है नदर्न अमेरिका, तो नदर्न अमेरिका में जब जाएंगे तो यहाँ पर वेस्टलीज ही काम करे, क्योंकि ऊपर जितना जाते जाएंगे वेस्टलीज, अब पोलार पे चले जाएंगे तो फिर ईस्टर्लीज, तो यहाँ पर सारा का सारा कहाँ काम कर रहा है, वेस्टलीज में कर रहा है। तो अब इसमें देख लेंगे, ठीक है, ध्यान समझना, इन नॉर्थ अमेरिका लॉरेशियन को हम देख रहे हैं, ठीक है, इन नॉर्थ अमेरिका पे, यहां पर क्या लॉरेशियन में वेस्टलीज विंड की वजह से रेनफॉल कैसी हो रही है थ्रू आउट ईयर, समर में वेस्टलीज क्या करती है, समर में वेस्टलीज ब्रिंग्स रेन ड्यू टू द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द ग्रेट लेक,
ग्रेट लेक से कंटेंट लेके मॉइस्चर कंटेंट लेके आती है। मॉइस्चर लेके कहां से आएगी? कब? समर में। समर में लेकर आएगी ये ग्रेट लेक से, ठीक है। अब आपको समझना है इसमें। इसके बाद विंटर में गल्फ स्ट्रीम जो आती है आपकी, वो क्या, गल्फ स्ट्रीम कहां से आ रही है? गल्फ ऑफ मैक्सिको के पास से। तो इसमें क्या है? इसमें सबसे ज्यादा क्या है? वार्म करंट है। गल्फ स्ट्रीम कैसी? वार्म करंट। वार्म करंट है, इट मीन सरफेस, वहां का सरफेस टेम्परेचर जो है, सी सरफेस टेम्परेचर, ये कैसा होगा? वार्म होगा। तो जो एयर यहां से जाएगी तो ये भी अपने साथ मॉइस्चर लेके जाएगी कि नहीं? यस, मॉइस्चर लेके जाएगी। तो ये यहां पर बारिश करा लेती है विंटर में, ठीक है। तो यहां पर फर्क डालती है कौन सी? ईस्टर्लीज विंड काम करती है। ये ऊपर आएगा तो यहां पर पोलार ईस्टर्लीज विंड काम करेंगी, अटलांटिक से आएंगी, ऊपर से अटलांटिक से। जब पोलार रीजन पे ना, यहां पर हम बात कर रहे हैं, तो यहां से गल्फ से यहां से गई है ऐसे, लेकिन ये गर्म है तो ये अपने साथ ही वार्म टेम्परेचर लेके जाएगी। एयर यहां राइज होगी थोड़ा सा हाई टेम्परेचर के पास, सब पोलार रीजन पे। और जब यहां से अटलांटिक से जब यहां से जाएंगी ये हवाएं, तो ये इसे क्या करेगा? यहां बारिश करा देगा। तो ये भी एक इंक्रीज कर देता है मॉइस्चर को। तो ये भी इसका एक पार्ट है, ये भी इसको समझने वाला हिस्सा है, ठीक है। अब लॉरेशियन टाइप का आप चाइना में देख लें, जापान में कहा, किस किस कंट्री में, किस किस उसमें कैसे कैसे काम करता है। लॉरेशियन टाइप चाइना में क्या काम करता है, चाइना में कैसे रहता है, तो इसकी बात कर लेते हैं। चाइना टाइप मत कर देना, इन चाइना है। चाइना में समर मैक्सिमम रहता है, ज्यादा रहता है, लैंड पर हीट ज्यादा होती है। तो विंड कहां से आती है? इसमें पैसिफिक से आएंगे। पैसिफिक से आएंगे तो बारिश कराएंगे, होगी कि नहीं? यस, चाइना है तो यहां पर ये क्या है? समर ज्यादा रहेगा, गर्मी ज्यादा रहेगी। गर्मी ज्यादा है, यहाँ की लैंड कैसे? ज्यादा हीट होगी। और साथ ही साथ इसका ईस्टर्न पार्ट अगर देखा जाए चाइना का, तो किससे जुड़ा है? पैसिफिक ओशन से। तो अगर यहाँ का हीट ज्यादा है तो यहाँ पर क्या होगी? एयर राइज होगी। एयर राइज होगी, लेकिन वो है पैसिफिक ओशन, तो मॉइस्चर भी लेके आएगी, फिर यहाँ पर बारिश करा देगी। विंटर में साइक्लोन ही नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है? विंटर में जो आपका कोल्ड विंड आती है, ब्लो होती है साइबेरियन से, स्नोफॉल होता है, इस वजह से यहाँ बारिश नहीं होती। एंटी साइक्लोन, साइक्लोन भी नहीं बनता। तो ये भी इसमें पार्ट हम कह सकते हैं इसमें, ठीक है। अब क्लाइमेट ऑफ जापान, जापान का क्लाइमेट देख लें हम कि जापान में कैसा क्लाइमेट है। अगर जापान की बात करें तो रेनफॉल फ्रॉम द साउथ ईस्ट मानसून इन समर। अगर साउथ ईस्ट मानसून देखा जाए जापान का, तो वहां से ऐसा लगता है कि आ रहा है और रेनफॉल करवा रहा है समर में, गर्मियों के टाइम पे। तो इसको भी हम इसमें सही से देखेंगे। नॉर्थ वेस्ट मानसून विंटर में लेके आता है ड्राई विंड साइबेरिया से, और ये फिर ईस्ट चाइना सी से मॉइस्ट हो जाता है, फिर इसके बाद बारिश करा देता है। आप देख लें, देखो मैं आपको थोड़ा सा पिक्चर पे लेके चलूं तो आपको और चीज समझ में आएगी। ये वाला पार्ट। अब यहां पर आपका और थोड़ा सा वैसा लेके आऊं क्या मैं? ऐसा, ये। अब यहां पर देखिए, ये जापान वाला पार्ट है। यहां पर क्या है? ये जापान है, ठीक है। और यहां पर क्या है? ये येलो सी ऑफ चाइना, येलो सी ऑफ चाइना। अब यहां पर जो अभी इसमें है कि समर के टाइम, जब समर होगी, यहां गर्मी होगी, ध्यान समझना, जब गर्मी होगी तो यहां पर साउथ ईस्ट मानसून नीचे वाला, ये इधर से जाएगा पैसिफिक ओशन साइड से। इधर के लिए तो पैसिफिक ओशन काम करेगा, ठीक है। पैसिफिक ओशन से विंड जाएगी तो अपने साथ क्या लेके जाएगी? मॉइस्चर लेके जाएगी और बारिश कराएगी यहां पर जापान में। अब ठंडी में क्या होगा कि ठंडी में यहां से, तो यहां से क्या, ये आपका रसिया है ऊपर वाला साइबेरियन, यहां से ठंडी हवाएं आएंगी। लेकिन ठंडी हवाएं जब आएंगी वहां से, लेकिन जैसे ये साउथ चाइना सी में आएगा, यहां पर चाइना में जैसे आ जाएगा, ये सॉरी ईस्ट चाइना सी, ईस्ट चाइना सी में जैसे आएगा तो ये मॉइस्ट हो जाएगी एयर,
एयर आएगी तो यहाँ एवोपरेशन चल रहा होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा बहुत ये मॉइस्चर लेके लेगी तो ये फिर बारिश करा देगी यहाँ पर। तो दोनों तरीके से यहाँ पर बारिश हो जाएगी इसमें, ठीक है। और जब बारिश हो जाएगी तो यही तो हमारा क्लाइमेट ऑफ जापान है, जापान का क्लाइमेट ऐसा ही। और यहाँ पर साइक्लोन बहुत आता है, इसलिए यहाँ पर साइक्लोन आता रहता। दोनों तरफ क्या है, ओशियन है। ओशियन की वजह से अब क्या करोगे, जाहिर सी बात है कि दोनों तरफ अगर खाई है तो मरना तो तय है, गिरना तो तय है, तो यहां पर ये ऐसा आता रहता है। अब लोरेशन टाइप में कॉनिफोरस, जो आपका कॉनिफेरस फॉरेस्ट है वो ज्यादातर मिलते हैं यहाँ पर। कलरफुल फूल मिलेंगे, पोटैटो, ओट्स, बर्ली, सोयाबीन्स, इनकी खेती ज्यादा होती है अगर इस एरिया की बात करें, तो यहाँ पर हम इस चीज को भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम इसकी डिस्कस करते हैं कि भाई इसमें एग्रीकल्चर या खेती कैसे होती है, इस चीज को भी देख लें थोड़ा सा, तो आपको ये समझ आ जाएगा। तो जो कोनिफोरस फॉरेस्ट है, यहाँ लंबरिंग यानी ओक, बिर्च, बीच, मैपल, इस टाइप की, ओक, बिर्च, मैपल, ऐसे आपको यहां पर क्या मिलेगा, बिर्च है, बीच भी है, ये ऐसे आपको ट्रीज यहाँ पर पेड़ मिलेंगे। एग्रीकल्चर में क्या होगा, ये पेड़ों की बात है। एग्रीकल्चर में अगर फॉरेस्ट का देखें, एग्रीकल्चर में आपको मिलेगा पोटैटो, टोमेटो नहीं, ओट्स जो आप खाते हो, ओट्स मिलेगा, सोयाबीन मिलेगा, ठीक है। कनाडा में एप्पल की फार्मिंग अच्छी खासी होती है, तो इसी जो एरिया में आता है कनाडा का पार्ट, वो इसमें ज्यादातर आता है, ठीक है। तो ये चीज हम यहां से देख सकते हैं। अभी इसमें इसके बाद हम इसको अगर सही से और समझने का ट्राई करें और टेम्परेट रीजन की बात करें, ये किस एरिया में, टेम्परेट रीजन से ऊपर चलो आप, तो टेम्परेट रीजन का थोड़ा पार्ट और आपका पोलार रीजन वाला पार्ट इसमें मिल जाता है, मिक्स हो जाता है। तो यहाँ पर साइबेरिया, और थोड़ा सा जैसे पोलार रीजन आएगा तो वहां पर आ जाएगा पर टुंड्रा, टाइगा, फिर टुंड्रा आ जाएगा। तो यहाँ पर टाइगा से पहले कह सकते हैं टेम्परेट रीजन। यहाँ पर क्या, फिश इन लार्ज सोल्स होता है, क्योंकि यहाँ पर ठंडी और गर्म करंट मिलती है, वार्म एंड कोल्ड करंट, जिसकी वजह से यहाँ पर ये फिश ज्यादा होती है। जहां पर आपके वार्म करंट और कोल्ड करंट मिल रही हो, समझो वहां पर फिशिंग बहुत अच्छी है, प्रोडक्शन बहुत है। लेकिन शिप नहीं जाती सही से, शिप टकरा जाती है कभी कभी, जैसे कि आपकी एक शिप टकराई थी, क्या नाम है उसका, पप्पू सिंह आज आए हुए हैं, इंफॉर्मेटिव सेशन, सत्यम त्रिपाठी, ओके, थैंक यू। अब हम अगर इसकी बात करें, टेम्परेट रीजन की बात करें, टेम्परेट आप फिशिंग एरिया की बात करें, तो टाइटैनिक आपने जहाज देखा था ना, तो वहां पर कभी वो पोज बना ही रहे थे कि उतने में क्या हुआ, वहां पर फॉग आ गया, दिखा नहीं, फॉग दिखा नहीं ड्राइवर को फॉग में, और नीचे क्या आ गया कि आइलैंड जो था वो उसका आइसबर्ग का वो टूट गया। तो वहां पर मछलियां बहुत हो सकती है, जहां पर वार्म करंट मिल रही हो और आपकी वार्म करंट के साथ साथ कोल्ड करंट, जब दोनों मिलती हैं, वार्म करंट और कोल्ड करंट, तो वहां पर क्या होता है, फिशिंग अच्छी होती है, फिशिंग प्रोडक्शन अच्छा होता है, मछलियां बहुत पैदा होती हैं वहां पर। लेकिन जहाज के लिए ठीक नहीं होता, ओके। एंड इसके साथ साथ आप देखिए कोल, मार्क, टूना, सॉलमन, यहां पर ये आपका कॉड है, मार्करेल है, टूना है, सॉलमैन है, ये यहाँ के आप कैसे टेम्परेट रीजन के जगह पर यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये हमारे यहाँ पर इकोनॉमिकली प्रॉफिटेबल है, यहाँ पर मैकनाइज्ड है पूरी तरीके से, फिशिंग अच्छी होती है। जैसे आप सेंट जॉन्स पोर्ट आप देख लो, न्यू फाउंडलैंड में बना है, ग्रांड टैंक, न्यू फाउंडलैंड कहाँ है, अमेरिका में आप देखेंगे यहाँ पर इस जगह पर, जब मैक्सिको के पास यहाँ पर न्यू फाउंडलैंड आता है, यहाँ पर गल्फ स्ट्रीम यहाँ से आती है और यहाँ से लेब्राडोर आती है, लेब्राडोर आती है आपके पोल से, तो ये होती है ठंडी कोल्ड करंट है, और ये आती है वार्म करंट। तो यहाँ पर फिशिंग एरिया यहाँ पर भी बहुत ज्यादा है, न्यू फाउंडलैंड जो आपका नॉर्थ अमेरिका पार्ट में पड़ता है। हर्षित कुमार, गुड इवनिंग हर्षित, ओके। सो ये है, यहाँ पर ग्रांड बैंक बोलते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सबसे ज्यादा मछलियां होती है। ये तो हो गया आपका लॉरेशियन। अब चलते हैं हम थोड़ा सा टैगा टाइप में। टैगा कहाँ आएगा, टैगा आ जाएगा एकदम ठंडा, मतलब टेम्परेट रीजन के ऊपर, जैसे जैसे सब पोलर रीजन आएगा। अब देखो मैं थोड़ा सा लैटिट्यूड से दिखाऊंगा आपको, फिर इसके बाद वहां से देखना। अब हम कहां पहुंच गए, हम पहुंच गए यहां पर, मतलब इस एरिया पे पहुंच गए। यहां पर तो टुंड्रा आ जाएगा, और इसके नीचे वाले पार्ट पे हम है टैगा, इसे टैगा बोलते हैं, और इसके नीचे वाले पे लॉरेशिया था,
और यहाँ पर आपका ब्रिटिश, ब्रिटिश थोड़ा सा ऊपर नीचे भी आ जाता है, तो हम इसको कर सकते। गुड इवनिंग हर्षित। तो यहाँ पर ये हमारा टाइगर, टाइगर नीचे भी जाए तो नीचे तो लैंड है नहीं साउथ में, तो यहाँ ये भी नहीं होगा, यहाँ पर इसका काम ही नहीं है, ना टाइगर ना टुंड्रा, टाइगर यहाँ काम नहीं करेगा। नो, सदर्न, नॉट इन सदर्न हेमिस्फीयर में नहीं है। इधर पे आएंगे तो आपको रसिया मिलेगा, यहाँ पर रशिया है कि नहीं, रशिया मिलेगा, कनाडा मिलेगा, नॉर्थ अमेरिका में अलास्का मिलेगा, ये सारी चीजें कंट्रीज यहाँ मिलेंगी। क्योंकि आप अगर यहाँ से देखें तो मैं आपको फिर से, तो यहाँ पर ये क्या है, ये क्या है, ये रशिया ही तो है, ये अमेरिका का पार्ट है, तो ये दोनों के ऊपर ऊपर, तो इस एरिया पर ये टाइगा काम करता है। टाइगा जो क्लाइमेट है वो इस पे काम करेगा, टाइगा क्लाइमेट। तो साइबेरिया इन रसिया, नदर्न कनाडा, स्कैंडिनेविया, नाइविया, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऐसी है जहां पर विजार्ड इन कनाडा, बुरान इन साइबेरिया, यहाँ पर ये आपके क्लाइमेट मिलते हैं। लिख लो, नाम लिख सकते हो। यहाँ पर साइबेरिया है, ठीक है, साइबेरिया में जगह अगर देखा जाए तो बुरान कह सकते हैं। कनाडा, यहां पे बात करें तो कनाडा, कनाडा में कौन से है, ब्लिजार्ड, ब्लिजार्ड, यहां पर ब्लिजार्ड है। और अगर हम नदर्न कनाडा भी कह सकते हैं, और स्कैंडिनेविया वो भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो इस जगह पर ये मिलता है हमें टाइगर, ऊपर वाले पार्ट पे मिलता है। ये वेरी कोल्ड विंटर, विंटर में बहुत ज्यादा कोल्ड होता है, समर में थोड़ा सा वार्म हो सकता है, बाकी ज्यादा नहीं। तो ये अगर विंटर में देखा जाए तो यहाँ बिल्कुल बर्फ ही जम जाती है विंटर में। लोग हनीमून के लिए अक्सर जाते हैं वैंकूवर कनाडा। तो यहाँ पर क्या है, ये हनीमून प्लेस है, ये बेसिकली कह सकते हैं यहाँ एकदम, क्योंकि हनीमून का जो कहते हैं आनंद है वो ठंडे प्लेस में पता नहीं क्या आनंद लेते हैं वहां। अब कैसा वहां पर हनीमून में, जैसे कि कश्मीर, शिमला, ऐसे ठंडी जगह जाते हैं, तो हो सकता है भाई कि ठंडी गर्म होगा तो फिर मछलियां पैदा होंगी, है ना। तो वही वाला सीन यहाँ पर भी है, ठंडा गर्म। तो यहाँ पर कोल्ड विंटर, बहुत कोल्ड होता है विंटर, अब वार्म समर, थोड़ा सा वार्म होता है, ज्यादा नहीं, मॉडरेट हो जाता है ये कह सकते हैं। तो हम इसको, ये टाइगा का टाइप है, टाइगा यहाँ पर है, सदर्न में नहीं है। यहाँ पर वेरी हाई एनुअल टेम्परेचर यहाँ से रखता है, लेकिन ठंडा वाला ज्यादा रहता है। एनुअल टेम्परेचर यहाँ रेंज ज्यादा है ठंडे वाले की, तो वेरी हाई एनुअल टेम्परेचर, क्योंकि कूल के हम पढ़ रहे हैं ना, कूल रीजन वाला, तो यहाँ पर वेरी हाई एनुअल टेम्परेचर है यहाँ पर, ठीक है। अब आगे चलते हैं इसको। टाइगा में रेनफॉल थ्रू आउट ईयर होता है यहाँ पर, क्योंकि ये सब पोलर रीजन के पास है। मैं इसमें थोड़ा सा फिर से इसमें करूं, ये सब पोलर रीजन है, इसे हम बोलते हैं क्या, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट इसे बोलते हैं, और एक दूसरा नाम भी देते हैं ITCZ2। क्यों इसको, क्योंकि यहां पर भी देखो ट्रेड विंड टकराती हैं, तो इसलिए ITC, इंटर कन्वर्जेंस क्या है, जोन। यहां पर भी, यहां पर ईस्टलीज आती है, यहां वेस्टलीज आती है, तो ये भी टकराती है यहाँ पर, तो ये ईस्टलीज, ये भी यहाँ पर इंटर कन्वर्जेंस जोन 2 आ जाता है। यहाँ पर टेम्परेट साइक्लोन आएगा, यहाँ पर आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन नहीं आएगा। यहाँ से यहाँ के बीच में जो साइक्लोन आएंगे वो टेम्परेट साइक्लोन आते हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेगा, कोनिफेरस, जैसे जूनिपर है, बिर्च है, स्पुर्स है, ऐसे टाइप के यहाँ पेड़ मिलेंगे आपको, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम इसको टाइगा को, यहाँ पर एक आपको जैसे मिलते हैं फुर वेयरिंग एनिमल, जैसे वार्म ब्लडेड, जिसके आपको बियर मिलेंगे, भालू, मुस्कुरात, मिंक, सिल्वर फॉक्स, ऐसे करके यहाँ जानवर मिलते हैं। मैं जानवरों को थोड़ा सा दिखा देता हूँ, किस टाइप के जानवर आपको दिखाई देंगे यहाँ पर, कैसे कैसे मिलेंगे। सो वो आपको मैं यहाँ से थोड़ा सा, ये ऐसे जिनके हॉट ब्लड होते हैं ना, ऐसे जानवर यहाँ पर ज्यादा दिखाई देते हैं। ये चूहा है, जैसे इसे मुस्कुरात बोलते हैं वैसे देखा जाए तो, ऐसे करके चूहे यहाँ पर अक्सर, चूहा हो चाहे वो भालू हो, वियर हो, या कोई भी ऐसा सिल्वर फॉक्स हो, वो यहाँ पर ज्यादातर मिलते हैं जिनमें कि हॉट ब्लड होता है, हॉट ब्लड, ठीक है। तो ये हमारे वार्म ब्लड होता है, जिसकी वजह से ठंडी जगह पे रह लेते हैं ये।
टैगा लिमिटेड इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स, इसमें ज्यादा इकोनॉमी रीजन नहीं है, इसमें बहुत थोड़ा सा, क्योंकि बर्फीला जगह है तो ज्यादा इकोनॉमी जनरेट होगी ही नहीं। ठीक है, नमस्ते उमेश मिश्रा, यूपीएससी स्टडी। ओके, ये तो शायद आप पहले भी आते थे, बहुत दिनों के बाद दिखाई दिए उमेश जी, ये मुझे याद है। आप 1 साल पहले 2 साल आए थे शायद हमारे इसमें, पहले आते थे लेकिन आते नहीं। याद तो बहुत आती थी हमें आपकी। विवेक, ओके, गुड एक्सप्लेनेशन सर, थैंक यू। तो ये टैगा है, लिमिटेड इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स है, यहाँ पर ज्यादा इकोनॉमी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, हार्ड वेदर है यहाँ, ठंडा ज्यादा होता है। और ये आर्कटिक एंड पोलार क्लाइमेट में अब आते हैं हम, जो लास्ट का आपका क्लाइमेटिक रीजन है वो है टुंड्रा। ठीक है, तो टुंड्रा का मतलब पूरी तरीके से आपका पोलार रीजन पे वो चले जाओ। ठीक है, इस पे आ जाओ पूरी तरीके से, यहां पर नदन पोल आ जाओ, सदन पोल, यहाँ यही टुंड्रा तो यही है बिल्कुल पोल पर, जहां बर्फ ही बर्फ हो। तो नीचे तो है नहीं लैंड, ऊपर ही ऊपर है, तो हम इसको आप कह सकते हैं आर्कटिक या पोलार क्लाइमेट इसे बोलते हैं। नदन कनाडा एंड नदन रशिया दोनों इस पे आ जाते हैं, और इसे क्लाइमेट हम कह सकते हैं पेरी ग्लेशियल क्लाइमेट भी बोलते हैं इसे। तो बेसिकली इसके अच्छा आए हैं, ओके गुड। तो यहां पर क्या है कि यहां पर आर्कटिक वाला सबसे ऊपर आर्कटिक है, यहां अंटार्कटिक है। आर्कटिक कह दें या पोल कह दें, दोनों चीज है, आर्कटिक या पोलार क्लाइमेट, या फिर इसे हम पेरी ग्लेशियर कह सकते हैं, पेरी ग्लेशियर। तो ये भी इसमें आ जाए ग्लेशियर में अगर बात करें। ये नदन कनाडा और नदन रशिया पार्ट इसमें आ जाता है, ऊपर वाला पार्ट, क्योंकि ऊपर वाला पार्ट देख लें इसमें, तो ऊपर का सबसे पार्ट नदन वाला पार्ट तो इसी में आ जाएगा, सारा का सारा जितना भी रशिया, तो यहीं से जुड़ा ही है। ठीक है, इसका फ्रीजिंग विंटर में पूरा फ्रीज हो जाता है, पूरा का पूरा फ्रीज हो जाता है, लेकिन समर में ऐसा लगता है कि थोड़ा ठीक है, चल सकते हैं, घूम सकते हैं, लेकिन इतना वहां पर गर्म नहीं होता। समर शॉर्ट टाइम के लिए होता है, और जो ठंडा आता है वो बड़े लॉन्ग टाइम के लिए आता है। ठीक है, इसके बाद आप कह सकते हैं यहाँ पर जो आपको मिलते हैं एल्गी, फंगी, लाइकेंस, ये ज्यादातर यहाँ पर मिलते हैं हमें और देखने को मिलता है। ठीक है, तो इन चीजों को हम यहाँ से देख सकते हैं। मॉसेस लाइकेन में आ जाता है, लाइकेन है, एल्गी, फंगी, इंफीरियल फ्लोरिंग प्लांट यहाँ पर कह सकते हैं जो ठंडी जगह पे होते हैं, हम इनको लग सकते हैं। इसके बाद आप कनाडा में अगर देखें तो कनाडा में आप थोड़ा सा इसमें देख सकते हैं कनाडा में कैसे कैसे मिलती हैं चीजें। और इसके बाद जैसे कि आपका रशिया में है चुकाची, बुरियत, बैकाल लेक के पास, वहां पर ऐसे पौधे तैयार होते हैं। नॉर्वे फिनलैंड में लैप्स आता है, नैमेडिक हार्डर यहाँ पर थोड़ा सा जो ठंडी है, जानवर भी आते हैं यहाँ पर, तो ये सारी चीजें यहाँ पर दिखाई देती हैं। तो आज से आपके जितने भी हमारे क्लाइमेटिक रीजन्स थे वो सारे के सारे क्या हो गए, कंप्लीट हो गए बेटा। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गए। कल हम इसमें करेंगे थोड़ा सा जियोग्राफिकल करंट अफेयर्स, देन इसके बाद हम ह्यूमन जियोग्राफी या बायो जियोग्राफी लेकर आएंगे, तो वो आपको यूट्यूब में दिख जाएगा, तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, ओके, सो अब हम इसको आज यहीं एंड करेंगे। कल की क्लास में हम नया सेशन रहेगा फिजिकल, जो क्लाइमेटिक, जो आपका क्लाइमेटोलॉजी चल रहा था वो कंप्लीट हो गया। फिजिकल नहीं कैसे, फिजिकल तो मैंने पहले पढ़ा भी दिया था ऑफलाइन में वैसे, तो इसको हमने यूट्यूब पे लेके आए हैं, तो थोड़ा सा ऐसा चलता रहेगा। ठीक है, तो एक हम इसमें चाहे तो हम इसमें वर्ल्ड जियोग्राफी लेकर आएंगे, जिससे और आपको मजा भी आएगा, चीजें देखने को भी मिलेंगी। ओके, वर्ल्ड जियोग्राफी शुरू करेंगे और जियोग्राफिकल करंट अफेयर्स भी। ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू।